Hello everyone. So today we are going to talk about the chapter called The Lost Spring. The book is Flamingo. This is your second chapter. The title is Lost Spring. Now we are all familiar with the word spring. Spring is a season. But over here, the writer, whose name is Anis Jung, she is an Indian female author. She has metaphorically given the title The Lost Spring. Now spring is the season where the flowers and the fruits get blossomed. But over here, something that is lost, and that is spring. Why she has given this title? So we'll talk about this thing. But let us first start with the author. The name is Anis Jung. She is an Indian female author. And she is a journalist, a columnist who writes for newspaper in India and abroad. Now let me tell you people, columnist, who is columnist? Like the person who writes in the newspapers, and particularly they write for the articles, or like there are some instances on basis of they write their own opinions and all that. So is known as a columnist, and she is writing for India and abroad also. She belongs to aristocratic family from Hyderabad. So she is having a well education, a good family, and kind of affordable life. So this Lost Spring, this chapter is actually divided into two parts. I have given these two parts. But let us talk about the character first. The first character, and that character belongs to the first part, whose name is Sahib-e-Alam, a rat pickers. रैट पिकर्स का मतलब ये होता है जो कूड़े कचरे और प्लास्टिक बॉटल्स, ये बैग्स वगैरह वो लोग उठा के कचरा इकट्ठा करते हैं. सो दैट इज नोन एज अ रैट पिकर. एंड अनदर पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक, दैट इज मुकेश, इज अ सन ऑफ अ बैंगल मेकर. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, एंड दैट फर्स्ट पार्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी in the garbage. Now you know that importance of a single rupee. अगर उस बंदे को जब कचरा ढूंढने जाता है, डस्टबिन खोलता है, तो he is getting a rupee, and for him that particular rupee can be a gold. And the second part is I want to drive a car. So the first part is about Sahib-e-Alam, and the second part is about Mukesh, who is the son of the bangle maker. सी डियर फ्रेंड, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है एक मेटाफर क्यों है? मेटाफर का मतलब एक सटायरिकली जो इन्होंने टाइटल दिया है. एक्चुअली ये लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं. दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइक सो मेनी थिंग्स लाइक व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ. उनका भी एक लाइफ स्टाइल होता है और वो भी इसी तरह से जीते हैं. काइंड ऑफ यू नो सोसाइटी इज फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस एंड एवरीथिंग, लाइक दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड. दैट इज बीइंग mentioned by Anis Jung. So ये introduction है. Indian female writer है. She is journalist, columnist, and she belongs to the aristocratic family. So let us talk about Sahib-e-Alam. So Sahib-e-Alam, the part 1. She talks about life of rat pickers. अब जब अनिस जंग ने देखा कि अनिस जंग जो राइटर है, उन्होंने साहिब को देखा, Sahib-e-Alam, और नाम भी देखो कितना बड़ा लिखा है, Sahib-e-Alam. बट सटायरिकली देखा जाए तो ही इज जस्ट अ रैट पिकर. यू नो दैट काइंड ऑफ आयरनी इन द लाइफ. सो शी टॉक्स अबाउट लाइफ ऑफ रैट पिकर्स. जब अनिस जंग ने देखा कि साहिब की तरह बहुत से लोग ये रैट पिकिंग का काम करते हैं और कूड़ा कचरा उठा के ले जाते हैं, उसमें से बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक की बॉटल होती है या फिर कुछ कचरा होता है, जो वो चीज होती है पर्टिकुलर उनके लिए गोल्ड है. क्योंकि आफ्टर सेलिंग दैट पर्टिकुलर डस्टबिन में से जो भी कुछ मिला है, जब उसको बेच देंगे, दे गेट सम, आई वुड से पिटन्स ऑफ मनी, थोड़ा सा अमाउंट उनको मिलेगा. नाउ कैरेक्टर जो साहिब-ए-आलम है माइग्रेट फ्रॉम ढाका टू सीमापुरी. अब वो बेसिकली इज फ्रॉम ढाका, जो सेटल हुए हैं सीमापुरी में. तो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, लॉस्ट होम एंड फील्ड्स इन स्टॉर्म. और ऑब्वियसली ये माइग्रेशन का उनका ये एक पर्टिकुलर रीजन था कि उनका जो घर था, दे लॉस्ट लाइक इट वाज अ स्टॉर्म, जहां पे लिखा है, एंड दे केम टू बिग सिटी बट दे आर पुअर. और ऑब्वियसली चीज है कि
दिल्ली जैसी, हाँ दिल्ली में है तो मतलब इट्स अ बिग सिटी और ऑब्वियसली जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, बट दे आर पुअर एंड काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन, लाइफ में जो सारी चीजों का यूटिलाइज करना है। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, यू नो, सर्वाइवल इज अ क्वेश्चन फॉर दिस पीपल। एंड अनदर दैट ही हैज रिटर्न स्टे टू बिग सिटी बट दे आर पुअर। ऑथर वॉचिज साहिब फाइंडिंग गार्बेज एंड गार्बेज इज लाइक इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सो उसमें से जब गार्बेज मिलता है डस्टबिन से, कुछ भी मिला, सो फॉर देम इट्स अ सर्वाइवल, उसी से उसका जिंदगी का गुजारा चलने वाला है ना। और लाइफ में हर कोई अपने लिए काम करता है, फैमिली सेटलमेंट होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल अराउंड सराउंडिंग्स में आप देखो। बट ऐसे लोग होते हैं जिनका एक सपना होता है, और वो सपना क्या होता है, जैसे कि समटाइम्स फाइंड अ रूपी। अब जैसे कि कोई गार्बेज में से लाइक अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कुछ पैसे वगैरह कुछ कचरे के साथ निकल जाता है और उसको 1 रुपया मिल जाता है, तो दे फील वेरी हैप्पी एंड दे कंसिडर इट एज गोल्ड, जैसे कि कुछ सोना मिल गया है। अब एक क्या होता है, बीइंग अंडर प्रिविलेज पीपल, व्हाट डू दे हैव? सो किड्स हैव डिजायर एंड एम्बिशंस। और बट उसके बाद मैंने डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब है कि हम सोच सकते हैं कि ऐसे जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जो डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, दे डू हैव देयर ओन एम्बिशंस, वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है, कुछ विशेष होती है। लेकिन व्हाट हैपेंस, सिचुएशन, दे डोंट हैव सच प्रोविजंस इन देयर लाइफ, कुछ ऐसी जरिया नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग काम करने लगते हैं। अब जब साहिब को ये अनीस जंग जो राइटर है हमारे मिलते हैं, तब उनकी ये कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन मतलब एक छोटी सी मुलाकात होती है। तब ये कन्वर्सेशन में वो साहिब जो होता है, साहिब अनीस जंग को कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड दैट इज व्हाई शी हैज गिवन दिस टाइटल, यू कैन सी दैट। तो उन्होंने ये टाइटल लिया है। और यस, अनरीचेबल थिंग्स लाइक शूज है, टेनिस प्लेइंग है, ये सब सारी चीजें जो होती है ना, इवन दे डोंट हैव दैट बैट एंड बॉल बैट, वो नहीं खेल सकते, है ना, बिकॉज ऑफ दैट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। साहिब वर्किंग ऑन टी स्टोर, अर्निंग 800 विद द बिल। अब थिंग्स गॉट डिफरेंट, क्योंकि कब तक वो कचरा लाइक यू नो रैक पिकिंग का काम करेगा। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली he found a job जहां टी स्टॉल पे उसको काम करना होता है, एंड वहां से उसको 800 रुपीज पर मिलते हैं, और उसके साथ साथ उसको 2 टाइम का खाना भी मिलता है। बट दैट डजंट मीन, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने लिखा है कि बट जॉब टेक्स अवे हिज फ्रीडम, लेकिन जो जॉब होती है तो उसकी जो, जैसे पहले रैक पिकिंग का काम करता तो थोड़ी फ्रीडम, थोड़ी क्या, उसको पूरी फ्रीडम थी, डिपेंड्स अपॉन लाइक द वे ही इज यू नो इन सर्च ऑफ द गार्बेज, लेकिन नहीं हो सकता। सो ये जो फर्स्ट कंडीशन अनीस जंग ने लिखी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, तो ये लोग we may not imagine what kind of situations they are going through. So that is why she has pointed out that there are many people, those who are underprivileged, those who are deprived of many things, they have their own wishes, उनकी कुछ इच्छाएं होती है, they are aspirants, बहुत सी ऐसे उनको ख्वाहिश होती है पूरी करें, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बिकॉज दे मे नॉट बी, है ना, आप लोग हैं, हम हैं, और बहुत से सारे दुनिया में लोग हैं जो दे आर लिविंग देयर लाइफ इजीली, बट देयर आर सच ग्रुप ऑफ लाइक आई वुड से देयर आर मेनी पीपल, प्लेंटी ऑफ पीपल दैट स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर देयर सिंगल मील। रात को खाना है तो मतलब दे नीड टू वर्क फॉर द मॉर्निंग, सुबह से शाम तक काम करेंगे तब वो खाना खा सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक सिचुएशन दैट दिस पीपल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आई वांट टू ड्राइव अ कार, वो भी एक ऐसा एस्पिरेंट जो बॉय है जिसका नाम मुकेश है, जो भाई यू नो ऑफ द विश कि उसको ही वांट्स टू ड्राइव अ कार। तो ये जो इन्होंने जो पॉइंट आउट लिखा है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि देखो 1 रुपए का, सिंगल रुपीज का भी कितना इंपॉर्टेंस इसको फील होता है, एंड हाउ दिस पीपल आर यू नो सेलिंग दिस गार्बेज, और वो गार्बेज बेचना, उसमें से पैसा आना, और ऐसे
अब you can imagine the things how people are working. So that is how Anis Jung has immensely presented the contemporary situations of the people, like those who are, I am using this word again and again, underprivileged and deprived of so many things. So they want to live their own life, but the question always rises being underprivileged. So ये पहला पार्ट था. जो next part में हम बात करेंगे, that is about I want to drive a car. So see you in the next video. Till then, keep safe, be safe. Thank you.